Yes. Doubtful, convinced, never. This is very important. And vanity. Okay, so this is all is कीजिए ना, बाकी है बस, पता नहीं कौन बाकी है, आ जाएगा। so everything is a show off. हो गए ना, 14 जने हो गए. तो एवरीथिंग इज ए शो ऑफ फॉर थूजा. ठीक है, तो यहाँ पे ही ट्राइज टू प्रोजेक्ट. Wrong tell what is cannot. What is wrong and what is right, he is not able to tell. Okay, this is another important thing because right or wrong से थूजा को कोई लेना देना नहीं है. As I already presented a rubric, lie, पूरे लाइफ के अंदर में he lives with a lie. So there is no moral and he is not at all concerned about what is right and what is wrong. So now here comes the basic conflict of Thuja. So conflict is between inner self and the world. Very important. He, what I am from inside should not be projected from outside. And what I am from inside is I am not a good person. I am a बस very एक सेकंड वेट करना, hmm, दीदी आ रही है. hmm. बेसिक कॉन्फ्लिक्ट इज ये 7FC1495 यही है. हाँ हाँ ओके शायद. सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, व्हाट आई एम फ्रॉम इनसाइड शुड नॉट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम टू द आउटसाइड वर्ल्ड. एंड ठीक है, सो दिस इज द किंग ऑफ साइकोसिस. दैट इज व्हाई थूजा इज किंग ऑफ साइकोसिस. सो व्हाट इज थूजा फ्रॉम इनसाइड, ही विल नेवर प्रोजेक्ट इट टू द outside environment. And whenever this exposure will be done, so there will be so much anxiety. So this anxiety may even kill thuja patient. So everything is finished for thuja once his inner personality is exposed to the outside world. Okay, so this is the basic theme. Now you should try to remember this. This is the core of thuja. कि what I am, the basic core of thuja is the basic core of psychosis. As simple as that. कि जैसा साइकोसिस में होता है कि मैं अंदर क्या हूँ और मैं बाहर कैसा दिखाता हूँ, वो जो प्रोजेक्शन है दैट इज टोटली डिफरेंट. सो दिस इज व्हाट इज द वर्किंग ऑफ थूजा. तो डिल्यूजन इमेजिनेशंस एनिमल्स ऑफ ब्रिलियंटली इल्यूमिनेटेड. ये कहाँ से आया. तो डिल्यूजन इमेजिनेशंस एनिमल्स ऑफ ब्रिलियंटली इल्यूमिनेटेड. तो इसका क्या मतलब है. क्या मतलब निकल रहा है इसका. Thuja is having this delusion of brilliantly illuminated animals. Why? What brilliantly illuminated is something which is coming from the sky like a light, maybe, which is illuminating like a fast light from the sky. Maybe so. There might be a projection that something spiritual is maybe seen by him.
यहाँ स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना नहीं थूजा से. थूजा is completely not at all in relation with spirituality. Here, brilliantly illuminated means something which is shining. Okay. What is shining is animals. What are animals? Here, this whole world, Thuja perceives this world as made up of animals. So, थूजा का जो परसेप्शन है इस तरह का है कि उसको ये लगता है कि जो लोग गलत काम करते हैं वो ही चमकते हैं. ठीक है. सो दोज आर द एनिमल्स. एनिमल नेचर जिसकी होती है कैसी, नोचने खसोटने वाली, ठीक है, प्रीडेटर प्रे टाइप की नेचर जो होती है. सो दोज टाइप ऑफ पीपल ओनली विल बी शाइनिंग इन दिस वर्ल्ड. Second, he thinks delusion imaginations animals of passing before her. What does it means? Delusions imaginations animals of passing before her. ऐसे नेचर वाले लोग उसके आसपास से जा रहे हैं, एनिमल नेचर वाले. देखो एवरी यस यस सर दूसरे लोग उससे आगे जा रहे हैं. उससे आगे जा रहे हैं. ओके. एंड see what is passing before her. Passing means कि if you are lasting for a short time and anything which is passing means it is not worth noticing. So Thuja feels कि such type of people, they come and they go and nobody notices them. ठीक है. Even though these people they are brilliantly illuminated. ठीक है. Brilliantly illuminated means even though they shine, but that shine is not permanent. It is only for a short duration of time and that shine will be gone. So now Thuja looks in this world as कि if I do bad things, still I will not be it will not be a thing which will last for a long time. So here what I should do is I should become good. See, there are two options. Either you should become bad or either you should become good. So the bad version for Thuja, what he perceives is that the bad side of anybody is a short lasting thing. But if you are projecting good things, then you will shine. So this is why Thuja decides that I am bad from inside, but I should not project myself as bad to the outside world. I should not behave as if I am an animal, because the animal nature or these negative things will be short lived and I will not be given adequate weightage. If I project that I am a good person, then those things will be projected as good in the society. Delusion imagination ugly is. So he feels that from inside he is very ugly. Ugly means something which is looking wise which is not a good thing. अपने अंदर झांकता है तो उसको लगता है कि अपने अंदर में बहुत बड़ी या बहुत बुराइयां मन में है इसके. Delusion unfit for world. That is why he feels that in this world only good people survive. Bad people or animals they tend to pass away.
So here he feels that since I am ugly from inside, I am not fit for this world. So here the negativity and suicidal disposition and thoughts and everything comes after this delusion. So delusion voices hears abdomen are अगर ये आदमी इतना क्लोज्ड पर्सनालिटी है, वो अपने अंदर की बात बताना ही नहीं चाह रहा है, तो हमें वो इस तरह की शब्द जो ये है अनफिट फॉर द वर्ड एंड अगली ही इज, तो ये कभी बताएगा क्या? वो हम कभी कैसे नहीं, पता करेंगे? पता ही नहीं चलेगा, वो पता ही नहीं चलेगा। बड़े बड़े धुरंधर भी थूजा को क्रैक नहीं कर पाए। हाँ, तो वही अगर ऐसा है अनफिट फॉर वर्ड वो सोच रहा है, ये हमें कैसे मिल पाएगा? मुश्किल है जब तक कि वो सामने वाला नहीं बताएगा, वो मुश्किल है। तो वो सामने वाले को ही बोलना पड़ेगा, तभी अपन उसको मानेंगे ना। डिल्यूजन तो तभी आता है जब सामने वाला किसी न किसी तरह से उसको एक्सप्रेस करता है। अगर कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करे तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, टेंड एंड एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। जहाँ जहाँ इसके अंदर में सिफिलिस एंटर हो जाती है और हाई ग्रेड की सिफिलिस एंटर होती है, तो वहां पे ये सब चीजें आ जाती है। जहाँ पे प्योर साइकोसिस है इन थूजा, वहां पे ये सिफिलिस वाले जो वर्जन्स हैं वो नहीं आएंगे, वहां पे ये नहीं बोलेगा वो। ठीक है। सो वॉइसेस हियर्स एब्डोमेन आर इन हिज। नाउ व्हाट इज दिस? हियरिंग ऑफ वॉइसेस विच आर इन हिज एब्डोमेन। जो बातें उसने गलतियां की है या जो उसके अंदर की बुराई है, उसके कारण वो धीरे धीरे परेशान होता है, अपन या बोलते हैं वो ना, बातें उसको याद आती वो बोलते हैं ना, वो पेट में पचा रखी है मैंने। हाँ, बोलते हैं ना किसी के पेट में बात पचती नहीं है, या उसके पेट में बात नहीं टिकती है, वो बार बोल ही देता है हाँ, किसी को। तो ईयर एब्डोमन आर इन हिज वॉइसेस मीन्स जो उसकी जो इनर वॉइस है वो आती है उसको। ठीक है, यहाँ पे एब्डोमन यूज किया गया है, माइंड यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो अंतरात्मा। अंतरात्मा भी नहीं है, ये इंस्टिंक्ट्स होते हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो माइंड को छोड़ के कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे लॉजिक नहीं है, जहाँ पे इंसान एनिमल की तरह बिहेव करना चाहता है, सो दीज आर द एनिमल इंस्टिंक्ट्स। वॉइसेस हियर अनप्लीजेंट अबाउट हिमसेल्फ, तो अपने अंदर भी उसको अनप्लीजेंट सी फीलिंग आती है कि यार मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, अपने आप को लेकर के और नेगेटिव वॉइसेस उसको फील होती है। नाउ हु एम आई, व्हाट इज माय आइडेंटिटी? सो डिल्यूजन इमेजिनेशंस एनिमल्स ऑफ एब्डोमेन इन। तो अंदर तो उसके एक जानवर होता ही होता है थूजा के, एंड वो बिकॉज ये सारा प्रोजेक्शन करता है तो उसको लगता है कहीं ना कहीं जो मैंने झूठ बोले हैं, जो मैंने प्रोजेक्शन किया है, वो मुझे नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली उसको ये फीलिंग तो होगी ही, आज नहीं होगी लेकिन कभी ना कभी तो होगी कि मैं एक मतलब सिफिलिटिक फेज में सिफिलिटिक जब फेज। मरने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है, तब तब देन ओनली कि भाई मैंने बहुत गलतियां की इसलिए उसकी सजा भुगत रहा जी, हूँ। मैं गुनहगार हूँ, इस तरह की फीलिंग आएगी, दैट ही इज अ क्रिमिनल। Delusion imaginations cut two in could not tell of which part he had possession on waking. जब इतना ज्यादा प्रोजेक्शन हो जाता है तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं ये हूं या ये हूं। ठीक है, मेरी एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है? वो पर्सनालिटी है क्या जो मैं बाहर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, या वो जो मैं अंदर हूँ? एक्चुअली मैं हूँ क्या? सो delusion dirty he is. So from inside he is dirty, he is ugly. ठीक है, that is a real थूजा। एंड डिजीज हैज, उसको लगता है कि मुझे बीमारी है कुछ न कुछ। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सो अगेन
टू पार्ट्स मीन्स एक वो जो दुनिया को दिखाना है और एक वो जो मैं स्वयं हूँ, दैट इज हु आई एम फ्रॉम इनसाइड. दैट इज व्हाई ही इज डबल. तो थूजा इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शाइजोफ्रेनिया. ठीक है, ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उसके अंदर में थूजा बहुत अच्छा काम करेगी. स्पेशली जब आपके पास में अगर कोई हिस्ट्री ही नहीं मिलती है तो वहाँ पे थूजा आप एक बार दे के केस को थोड़ा सा लूज कर सकते हो. ठीक है, डिल्यूजन एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट एनी लॉन्गर शी कैनॉट. ये फीलिंग कब आएगी? जब द इनर पार्ट ऑफ थूजा विल बी एक्सपोज टू एवरीबडी. सो हियर उसको ये लगेगा कि अब मैं दुनिया के सामने कैसे जाऊं. नाउ आई कैनॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. सिफिलिटिक है ये. Delusion, enemy surrounded by. And why it is important to preserve my own self is because everybody is my enemy. तो अगर जरा सा भी कुछ इंफॉर्मेशन बाहर लीक होता है तो that will be utilized and they will try to harm me as enemies. So head belongs to another. Why is Thuja in head belongs to another? जो उसकी अंदर की वो बैड थिंग्स है जो रिवील हो जाएगी तो उसको फिर कोई और कंट्रोल या डोमिनेट करेगा ये पता चलने के बाद. तो उसकी वजह से हो सकता है कि डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर, कि अब कोई और कंट्रोल कर रहा है उसे. अब समझो इसको. हेड बिलोंग्स टू अनदर मतलब कि आई नीड नॉट यूज माई हेड. ठीक है, किस तरह से ये प्रोजेक्ट इस तरह से करता है कि जैसे अंदर से तो ये बहुत गुस्से वाला है लेकिन बाहर प्रोजेक्ट ऐसे करेगा जैसे उसके जैसा संत आदमी इस दुनिया में नहीं है. ठीक है, तो अब जो उसका रियल हेड है कैसा, जो कि उसका गर्म दिमाग है, जो उसका एंग्री माइंड है, ठीक है ना, वो तो काम में नहीं ले सकता. अब उसको बाहर जो प्रोजेक्शन करना है वो किस तरह से करना है? एज अ सेंट या एज अ साधु की तरह प्रोजेक्शन देना है. तो हियर हेड बिलोंग्स टू अनदर. समझ में आया ये? एलुमिना के अंदर में हेड बिलोंग्स टू अनदर का मतलब अलग है कि एलुमिना फील्स कि मुझे ब्रेन की जरूरत ही नहीं है, मेरे लिए कोई और काम करेगा. ठीक है, वहां पे कंफ्यूजन है, इनडिसिसिवनेस है, इसीलिए वहां पे हेड बिलोंग्स टू अनदर है. यहाँ पर में मैटर अलग है, यहाँ पे टोटली जो आइडेंटिटी है वही अलग हो गई. तो उसको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है उसके हिसाब से डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर है. अंडरस्टूड? Yes, sir. So delusion, identity errors of personal. So here comes the projection of identity and that is why there is a confusion of identity. तो यहाँ पे उसको delusion of identity होता है कैसे कि यहाँ पे डबल पर्सनैलिटी का प्रोजेक्शन होता है इसलिए. So delusion, imagination, influence is under a powerful. अब यहाँ किसी ने कल बोला था कि इन्फ्लुएंस के अंडर में होता है, तो यहाँ किस तरह का इन्फ्लुएंस है थूजा के अंदर? What type of influence Thuja is facing here? खुद का ही इनर जो माइंड जो कह रहा है और दूसरों को शो ऑफ करना है, वही इसको इन्फ्लुएंस हो जाता है. क्या लोग Very लोग nice. मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो मुझे खुद से ही वो कंफ्यूज देता है. Very nice, very nice. तो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है ये खुद के अंदर का ही है कि मुझे प्रोजेक्ट करना है एज समथिंग डिफरेंट. ये इन्फ्लुएंस है उसके अंदर में और इस इन्फ्लुएंस के कमांड को इसको फॉलो करना पड़ता है क्योंकि इसका सर्वाइवल इस पे डिपेंड करता है. ठीक है, इसका टोटल जो सर्वाइवल है ये अपने आप को छुपाने में लग जाता है ये. ठीक है, अपने आप का जो अंदर जो चीज है वो छुपने के अंदर में लग जाता है, अपने आप को छुपाने में लग जाता है. सो देयर द डिल्यूजन इज दैट there is an impulse which comes. Now you have to
behave like this, you have to behave like that. So that is the influence which comes from inside. Many remedies have influence which comes from outside. So in Thuja, this influence is self-built, which comes from inside. So delusion, walking, someone walks beside him. So because there is always a feeling that he is constantly under observation, so every time he will be having a feeling that someone else is with him. Whatever walking means, whatever activity he is doing, in whatever progress he is making in life, every time there is someone who is observing him. Then delusion, worthless he is. Worthless feeling comes when uh, same his true personality which comes in the picture, then he feels that he is worthless. Moreover, he feels that he is dirty, he feels that he is ugly. So this is one chain of thought which goes into state of worthlessness and suicidal. The delusion, wrong he has done. Why? Because आफ्टर ऑल ये जितना भी मैंने रोज झूठ बोला है, रोज प्रोजेक्शंस किया है, तो ये मैंने गलत किया, ये कहीं ना कहीं उसको लगता है. एंड wrong suffered has Thuja. Why Thuja feels wrong suffered? Why Thuja feels that he has suffered wrong? उसको ये लगता है कि अगर ऐसे व्यक्ति होते ही नहीं जो मुझे एक्सपोज करने में लगे रहते, तो ये सारा कार्यक्रम मुझे करना ही नहीं पड़ता. अगर करना ही नहीं पड़ता तो मुझे प्रोजेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे वो नहीं बनना पड़ता जो मैं अंदर से हूँ नहीं. ठीक है, तो उसके कारण से सी अ पर्सन हु इज एक्सपोज, हु इज ट्राइंग टू बिकम समवन एल्स, ठीक है, नेचुरली उसको कहाँ कहाँ नुकसान होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप में नुकसान होगा, सेकंड उसको बिजनेस में नुकसान होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी जो इनर इंस्टिंक्ट है वो अगर सामने वाला पढ़ लेगा, जज कर लेगा, तो nobody will try to connect with you, so everywhere you will suffer. So that is why he felt that he is suffering wrong, because such people are there in the life of Thuja who are constantly trying to judge him, who are constantly trying to observe him. So because of them, I have tried to become a good, and I have to try to project something else which I am not. And when people come to know my real feeling, so everything is broken. So here fragility comes. So now when Thuja sees that my outer covering, I have to protect my inner negative feeling, so he tries to cover up from outside. ठीक है, वो अपना जो एक आउटसाइड जो लेयर है, वो जो एक मेड अप बिहेवियर है, या जो एक पॉजिटिव साइकोसिस होता है कि वो प्रोजेक्ट करना कि आई एम लाइक वेरी गुड, so he will keep on building. But naturally, if a person is good from inside and he's projecting the thing to the outside world, it will not create any conflict. If a person is bad from inside and if he's projecting goodness to the outside world, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसके दिमाग में तो ये रहेगा कि ये चीज कब तक टिकेगी, कभी ना कभी तो ये लोगों को पता ना चल जाए. तो ये जो आउटसाइड वाली जो फीलिंग है कि लोगों को पता ना चल जाए, वो चीज कभी भी ब्रेक हो सकती है. सो दैट इज व्हाई द फ्रेजिलिटी कम्स इन Thuja. It is the feeling of the outside
covering which Thuja has formed वो कभी भी break हो सकती है. That has led to the delusions of fragility everywhere in the system, even in the mind and even in the physical body. तो ये जो fragility है ये एक superficial level पे आती है, ठीक है. So he feels that body parts, pieces, danger of going into. So body parts are in danger of going into pieces. तो सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, है ना. ये जो बाहर जो मैं दिखा रहा हूँ वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी इसके अंदर में आके कोई भी सवाल उठा सकता है, ठीक है. अब देखो, जो घर में झगड़ा करता है और बाहर जाके प्रवचन देता है कि झगड़ा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, किसी को पता चल जाए कि यार ये घर में इस तरह से झगड़ा करता है, पड़ोसी आके बोल दे, तो नाउ हिज होल इमेज विल बी रूइंड, ठीक है. तो वो उसको थूजा को फिर कांस्टेंट फियर रहता है कि कहीं ये चीज मेरी बिखर न जाए जो इमेज मैंने क्रिएट करी है. तो दैट इज व्हाई दिस problem of fragility goes in the form of delusion in thuja, and this travels into the whole body, in the whole system, even to the level of genes. So delusion brittle is, delusion glass is made of. So why these delusions are mentioned? Because thuja feels कि ये जो outside की covering है it will be broken very easily, ठीक है. यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है. अगर उसको लगता है कि ये बहुत टफ है और कोई भी नहीं ब्रेक कर सकता, देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट हियर थूजा थिंक्स दैट ये जो प्रोजेक्शन है इट इज वेरी वेरी फ्रेजाइल थिंग एंड एनीवन कैन ब्रेक इट. देन ग्लास मेड ऑफ लिम्स, ठीक है. सो होल बॉडी इफ इज दैट इट इज फ्रेजाइल, दैट डिल्यूजन थिन इज. सो नाउ one side there is fragility and another side, in order to overcome this fragile feeling inside him, outside again he projects that he is very tough. Delusion building stones appearance of, क्या मतलब है इसका? अंदर से कठोर है वो ये दिखाता है कि वो पत्थर का बना हुआ है कि बिल्डिंग स्टोन्स अपीयरेंस ऑफ, कि वो बाहर से अपीयरेंस बता रहा है, बाहर से ये ऐसा दिखाता है जैसे कि वो पत्थर का बना हुआ हो. सो आउटसाइड अपीयरेंस इज लाइक ऑफ स्टोन, दैट इज द प्रोजेक्शन. नाउ क्लोथिंग क्लोथ्स टू टाइट, ठीक है. अगेन दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, दैट व्हाटएवर कवरिंग ही हैज एक्सपोजर से बचाने के लिए टाइटली क्लोथ पहनना. हाँ नहीं, उसको लगता है कि बहुत टाइट है. देखो, आप ये प्रोजेक्ट करते हो कि मैं बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति हूँ, लेकिन अंदर से तो आप उसके ऑपोजिट हो, और वो जो अंदर वाली चीज है इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लोड, ठीक है ना. वो बाहर आना चाहती है, ठीक है, लेकिन बाहर जो है आपके जो अपने कपड़े लगा रखे हैं, ठीक है, तो वो उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं. तो हियर द फीलिंग ऑफ इनर साइड विच इज ट्राइंग टू एक्सप्लोड, ठीक है. तो यहाँ ये फीलिंग आती है कि क्लोथिंग फील्स टू टाइट. इसको इस तरह से मैंने समझा है. डिल्यूजन हैवी इज, डिल्यूजन लेग्स लॉन्ग टू, ठीक है. डिल्यूजन विंग्स बॉडी इज born अपॉन विंग्स लाफिंग आफ्टर, ठीक है. ये ज्यादा प्रोजेक्शन आई could not understand why wings body is born upon wings laughing after. So maybe it represents the light nature of thuja, ठीक है. इससे पैरेलल जो रूब्रिक्स मिले हैं वो ये है कि लाइट इनकॉर्पोरियल इमटेरियल ही इज. तो थूजा फील्स दैट ही इज वेरी लाइट, मतलब आता है वो इस तरह से प्रोजेक्ट करता है कि जैसे
अरे डॉक्टर साहब ऐसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, बहुत मस्त है, लाइफ में बहुत एंजॉयमेंट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है, तो ही इज लाइटर देन एयर। नहीं डॉक्टर साहब मेरे तो कोई टेंशन ही नहीं है, दुनिया में किसी के भी टेंशन हो सकती है, मेरे नहीं हो सकती है, ठीक है, तो दिस इज लाइटर देन एयर। लाइटर देन एयर मीन्स कि एनीथिंग, कि दुनिया में किसी के भी समस्या हो सकती है बट मेरे प्रॉब्लम नहीं हो सकती। डिल्यूजन इमेजिनेशन टोज लॉन्गर, इसको कौन समझाएगा? डिल्यूजन इमेजिनेशन टोज लॉन्गर। Delusion toes longer. What is that? What does foot represent and what does toes represent? फुट तो रिप्रेजेंट करता है कि किसी को सप्रेस करना हो, दबाना, दबाना, किसी को लात मारना, to kick लात somebody, मारना। और Toes are also for kicking. toes नहीं, ये देर इज अ स्लाइट बारीकी है इस चीज के अंदर में। फुट इज फॉर मूविंग अहेड इन लाइफ एंड टोज गिव यू द ग्रिप एंड द डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में आपको टर्न करना है। एग्रीड? अगर आप चल रहे हो एंड इफ यू वांट टू टर्न टू द राइट और टू द लेफ्ट, तो यहाँ पे योर टो गिव्स यू अ ग्रिप कि which direction you have to move. So toes give you the direction of movement. So here toes are longer means in whatever direction Thuja wants, he can try to modify himself. So this is the meaning of delusion. Toes are longer. Understood? Delusion more. एक बार वापस, टोज लॉन्गर मींस डायरेक्शन में, Toes represent the direction of your movement. कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है तो मैं अपने आप को कैसे उधर टर्न करूंगा, इधर जाना है तो मैं ग्राउंड पे कैसे ग्रिप करके इधर मूव करूंगा। तो यहाँ पे लॉन्गर का मतलब ये है कि थूजा कैन टेक कैन चेंज इन एनी डायरेक्शन इन विच ही वांट्स, मतलब ये है कि अपने आप को किसी भी तरह से प्रोजेक्ट कर सकता है ये, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टोज लॉन्गर। देन वुड मेड अप ऑफ, ये तो मालूम ही है सबको, ठीक है, कि ही ट्राइज टू प्रोजेक्ट कि मैं बहुत टफ हूँ, ठीक है, मैं, ठीक है, डिल्यूजन वुड मेड ऑफ। नाउ डिल्यूजन पॉइजनड हैज बीन ही, ठीक है, नाउ हु हैज पॉइजनड थूजा? हु हैज पॉइजनड थूजा? जो उसको सच बता देगा उसके बारे में। His own thought process has poisoned him. Self. ठीक है, उसका खुद का ही थॉट प्रोसेस है जिसने उसकी लाइफ में पॉइजन डाला है। And delusion pursuit of being, so constant feeling that somebody is okay, pursuing him in order to find out something,